are regulated. Nodal tissue, a special neural center in the medulla oblongata, and adrenal medullary hormones, adrenal cortical hormones. Okay, so that's fine. So what is the answer of this? What do you think? Which control human cardiac system? Give the answer. So nodal tissue we learned. हमने पढ़ा था nodal tissue के बारे में. Yes, we learned about nodal tissues. यहाँ पर पूरे नोडल टिश्यूज होते हैं ऊपर. These control human contraction, relaxation, है ना, हार्ट का. स्पेशल न्यूरल सेंटर रेगुलेशन you already learned. ठीक है, आप क्लास में पढ़ चुके हो about this. So it is related to that. So answer is beta, it's B. Answer is it's B. Now coming to 27th question. Now it is the order. I hope you can answer this. Beta, you sit. Question number 27. Okay. Following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart. Okay. So basically you have to start from where the impulses started. कहाँ से impulses start होती हैं? That is what you have to focus on. So now I would like to call first bench, middle row, middle boy. Yes, बेटा खड़े हो जाओ. Stand up. अब आपको भी everyone you should know और क्या कहते हैं जो हार्ट का डायग्राम है फटाफट बनाना आना चाहिए. ठीक है, विदाउट थिंकिंग. इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है, क्लास में अलग, यहाँ पर अलग. सो यू शुड बी मास्टर इन दैट. ओके, सो इट्स ए ह्यूमन हार्ट. नाउ इट इज आस्किंग कैसे जो ये इंपल्सेस है स्टार्ट होती है. क्या इसका पैसेज है? कहाँ से स्टार्ट होता है इंपल्स? ऐसे नोड. वेयर इट इज? इट इज हियर. ऐसे नोड इज हियर. ठीक है बेटा. Now from SA node, where current or impulse will go? Where it will go? AV node. That's right. AV node is here. It is here. AV node. Now from AV node, where it goes? AV bundle. AV bundle. So it is here. ये जो भी सिंगल है, it is a AV bundle. Okay. From where it will go? Branches मतलब bundle of hairs. They are talking about bundle of hairs. Now from where it will go? Purkinje fibers. So these are the fibers. So Purkinje fibers. So कौन सा आंसर सही हुआ बेटा? C. That's right. Good बेटा. Sit down. Purkinje fibers. Okay. Now coming to 28th question and now it's assertion and reason questions. ठीक है? ये reason and assertion questions है that we are going to discuss. Assertion and reason. Now assertion. Closing of semilunar walls produce the second heart sound dub. Is it right or wrong? So now who can tell me कि जो first sound होता है love वो किससे produce होता है? क्या चीज बंद होती है? सबने बोला, कुछ नहीं समझ आया. एक बच्चा खड़ा होके फटाफट बोले. देखो सभी को आंसर आता है, खड़े होने के लिए बोलो. यस, दैट्स गुड बेटा. Closing of tricuspid fibers. That's right. That's right. Good बेटा. So here assertion is true. ठीक है. Now coming to reason. Semilunar walls close during arterial systole. Now who can tell me? Or shall I take name? Shall I take name? बेटा खुद भी खड़े हो जाओ. जैसे अभी वो खड़ी हुई थी खुशवीर कौर. Who is खुशवीर कौर? Yes.
So Kushveer, can you tell me reason is right or wrong? Semilunar walls closed during arterial systole. Okay, no. So when semilunar walls closed, कब होती है फिर बंद? So what is the real or we can say correct answer of this? इसको अगर हमने correct करना हो तो what is the statement? Correct statement क्या होगी? अपने आप सोचो बेटा, पीछे आगे पीछे से कुछ नहीं, मैं फिर से घुमा के आंसर पूछ लूंगी कोई और क्वेश्चन। जितनी बार तुम पीछे मुड़ के पूछोगे उतनी बार आंसर जो है क्वेश्चन चेंज होएगा। Yes, semilunar walls are present where? Firstly tell me, semilunar walls कहाँ present होती है in heart? Where do they present? Yes, ये semilunar walls कहाँ present होती है? In auricles or in ventricles? Yes, Kushveer, where semilunar walls present? Ventricles. So they are present here. और क्वेश्चन कह रहा है कि वो कब बंद होंगी? ऑरिकल के सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन पे। तो ये किसके कॉन्ट्रैक्शन पे बंद होनी चाहिए, ऑरिकल्स या वेंट्रिकल्स? ये बेटा वेंट्रिकल्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, ठीक है, देन दे विल क्लोज। ओके, सो आंसर इज दिस। सिट डाउन बेटा, sit down. Now coming to 29th question. So firstly इसको तो false कर लो everyone. It is false. Coming to 29th question. Now 29th question is assertion is saying SA node act as the pacemaker of the heart. Is it true? Yes. Okay. Reason, it generates the maximum number of action potentials per minute compared to other parts of the conducting system. Yes, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि why only SA node act as pacemaker, कि वो ही स्टार्ट करती है, वो सबसे जल्दी जो है काम करती है। So assertion and reason both are true. Now coming to 30th question. Assertion is ventricular systole leads to the opening of the semilunar valves. Is it right? Yes or no? Ventricles contract हो रहे हैं, they are contracting, तो semilunar valve close ही रहेंगे या open भी होंगे? Yes. वो contract क्यों होते हैं? Why they contract? Ventricles, why they are contracting? Yes, who can tell me why ventricles contract? Yes, beta. Beta, can you please speak a bit loud? बेटा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आवाज कम आ रही है आपकी बेटा। pulmonary artery और aorta में blood को भेजने के लिए. So yes, to basically push the blood. Yes, Yes. blood को push करने के लिए Yes. they are contracting for that. अगर वो wall close रहेंगे, क्या वो बाहर भेज पाएंगे blood को? No. No. So the reason is क्या हो गया कि वो open हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ताकि जो है blood बाहर जा सके। So answer is क्या होगा? Assertion is right or wrong बेटा? Ventricular systole leads to the opening of semilunar valves. Is it right? Yes. Yes, that's right. Now reason is saying during the ventricular contraction, pressure in the ventricle exceeds the pressure in the pulmonary artery and aorta. Is it right? Is it right? So it's also right. If you know about the pressure, pressure moves from what? High to low. ज्यादा प्रेशर से कम वाले प्रेशर की तरफ जो है मूवमेंट होती है।
Okay. So now pressure in ventricles due to contraction is high as compared to the pulmonary artery or aorta. So that's why they push blood in that direction. Okay. So it is also right. Now coming to 31st question. Assertion. AB node delays the impulse from SA node. क्या ये सही है? Yes, is it right? Yes, it delays now because firstly it receives the signal, then it pass to the AV bundle, then to the Purkinje fibers. So it is delay. अगर ये सीधा खुद ही कर ले जैसे ऐसे नोट कर रही है, so it will be fast. So answer is true. Assertion is true. Now coming to the reason. Now focus on the reason part. Okay. Now we are focusing on the reason part. This delay ensures the ventricles contract before the atria. अगर वेंट्रिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट कर ले और आर्ट्रिया जो है नहीं करे तो क्या होगा? पहली बात तो वेंट्रिकल्स को ब्लड कहां से आएगा? तो तभी आएगा जो 30 ml या 30% रह गया. इट विल कम ओनली आफ्टर द arterial contraction or systole. So it's false. It false. Now last question is match the following. ठीक है, match the following. P waves. What it represent? P wave represent what? बेटा एक बच्चा खड़ा होके बोले. ये एक बच्चा था या मुझे कुछ सुनने में प्रॉब्लम हुई है? एक बच्चा बोल रहा था ये? नहीं ना, बहुत सारे बोल रहे थे. अब मैंने बहुतों को बोलते हुए सुना है. अब मैं उनमें से किसी एक को उठाऊंगी. तो आई वांट टू कॉल मिडल रो के राइट साइड वाली जो रो है, ऑन द राइट साइड ऑफ मिडल रो, फोर्थ लास्ट गर्ल ऑन द कॉर्नर साइड. फोर्थ लास्ट गर्ल ऑन द कॉर्नर साइड. बेटा मिडल रो के राइट साइड वाली कॉर्नर, नॉट मिडल रो, मिडल रो के राइट साइड में जो रो है उसके फोर्थ लास्ट. यस. ओके. सो बेटा नाउ टेल मी P wave represent what? Depolarization of atria. So it is depolarization. That's right. Okay, so that is fine. Okay, it is A के आगे लिख देते हैं. So it will be A. Okay. Now coming to Q wave. And now middle row के left side में third bench corner girl. Q wave represent what? Yes, बेटा. Yes, beta. What is the answer? Yes, heart muscles are electrically silent. क्योंकि नीचे वो चला जाता है ना वो, तो अभी उसमें इतना impulse नहीं है. So we can say it's first. ठीक है, B का first. Coming to C. You said बेटा QRS complex. Now QRS complex tells what? So middle row last girl. Yes. Depolarization of ventricles. So it's fourth. C का fourth. Now we are left with a D. D means TP wave. So TP wave represent repolarization of ventricles. So it's second. Okay. So is it fine? Now we have covered this chapter. अब मुझे ये पूछना है, any of you having any doubt in this chapter, do ask me. कोई doubt है? Is it clear?
I was thinking to take your respiration chapter, and I I was thinking कि उसको करूं, लेकिन but now I'm thinking to take your animal kingdom because this chapter is supposed to come in your half yearly. Yes. Yes. So shall I continue with the animal kingdom or respiratory? Now you tell me, what do you want? कुछ नहीं समझ आया, फिर से सबने पता नहीं क्या बोल दिया. Animal kingdom. Okay, so we are going to take this chapter now. ठीक है, so I'll start with the animal kingdom. अच्छा चलो, animal kingdom we are starting. Tell me, we humans are animal or what? Okay, so we humans are animal, है ना? और हम एक दूसरे को कहते हैं कई बार जानवरों जैसे काम क्यों कर रहे हैं, तो हम हैं जानवर, है ना? We are animals only. Okay, so now let's move ahead. ठीक है? So first question to everyone, why there is need to classify organism? क्यों हमने organism को classify करना है? जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रहने देते? Now who can tell me the question of this? The question is, why do we classify organism? क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं इन्हें? Yes. To make our study easy. Okay. Study also or make it easy for us to know कि एनिमल क्या है ना? Is it easy? अब मुझे बताओ, अभी तो चलो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, है ना? यू आर मेडिकल स्टूडेंट, बट बिफोर दैट व्हेन यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपके 4 सेक्शंस होते हैं, रोज, लोटस, सनफ्लावर, डैफोडिल्स. यस. Yes. And it is easy for the teacher to remember कि ये बच्चा जो है, सपोज करो तनिष नाम ले लेती हूँ. ओके, तनिष इज फ्रॉम लोटस. तो इट इज इजी कि हम किसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलर. वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु इज इन लोटस सेक्शन. तो हमें पता है, वी आर प्रीटी क्लियर. अगर मैं ये कह दूं कि 9th क्लास का या 10th क्लास का तनिष है, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन. वी गेट कंफ्यूज. कौन तनिष कहां पर है? 120 बच्चों में से या 160 बच्चों में से. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट तनिष, but it is easy to find out Tanish from the 40 student. Yes or no? Yes, it is easy. क्योंकि 40 बच्चों का नाम याद करना, it's not a big task, but to remember 160 students name for a single teacher, it is difficult. Yes. Yes. Similarly, अगर हम एनिमल्स की बात कर लें या बर्ड्स की बात कर लें, अगर हमने बर्ड्स को बर्ड्स नहीं कहा होता, अगर वो भी सिर्फ हमने कह दिया होता कि ऑर्गेनिज्म, तो हम कहते एक ऑर्गेनिज्म हवा में उड़ता है, तो आप सोचते रहते कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, है ना? उसका तो कोई नाम ही नहीं है, हम उसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है. अगर हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो अफ्रीका में पाया जाता है, कौन सा, किसकी बात कर रहे हो? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा में उड़ सकता था लेकिन उड़ नहीं रहा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म आ गया? इट्स अगेन बिग कंफ्यूजन. यस, कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट्स होगी ना ये वाली. अगर हम उनकी जो है प्रॉपर जो है कैटेगराइजेशन ना करें, नेमिंग ना करें, तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग गेट कंफ्यूज. बेटा यू सेट सो सब क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे. यस और नो? कंफ्यूजन हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. And here we have more than 1.7 millions of species. कितनी species है? There are over 1.7 millions of species. अब इन स्पीशीज को अगर हम एक ही कैटेगरी में पुट कर दें, so it is difficult for us to remember them. ठीक है, उनको याद करना मुश्किल हो जाएगा, कौन कहाँ रहता है वो हमें मुश्किल हो जाएगा. अगर आप हमसे कोई बोले अमीबा, जैसे अमीबा दिमाग में आता है, व्हाट वी थिंक कि ये तो क्या है? यूनिसेलुलर है. ठीक है, और ये जो है पानी में रहता है. ठीक है, सो वी थिंक लाइक दिस. इफ समवन
आस्क अस कि ईस्ट या फंजाई, तो हम कहते हैं ईस्ट तो फंजाई है। क्यों है फंजाई? क्योंकि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स वो है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है, तो लेट्स सी कि जो विटेकर था उसने क्या काम किया था। किस किस को विटेकर क्लासिफिकेशन याद है? How many of remember this? Raise your hand. Raise your hand. How many of you remember Whittaker's classification? किसी को नहीं याद है? एक स्टूडेंट को याद है. What about others? हाँ? अच्छा, 2, 3, okay, 4, 5. ये तो बढ़ता जा रहा है ना? That's good. That's good. अब मुझे बताओ Whittaker's classification में कितने ग्रुप्स थे? और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? What do we call them? Kingdom. ठीक है? So we call them kingdom. Now start from the very first. What is the name of the first kingdom? Monera. Second is Protista. ये protest कर दो. Third is fourth is and last is okay. These are fine. ठीक है, ये 5 kingdom थे. मोनेरा में क्या हम इंक्लूड करते हैं? What is in the Monera? Or shall we classify them on the basis of they are eukaryote or prokaryote? Can we classify them like this? Yes or no? On the basis of do they have nucleus or no? Yes? Do they have nucleus or not? Monera has nucleus? Well defined nucleus होता है मोनेरा में? Say yes or no? नहीं होता है ना, नहीं होता. तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? क्या कहेंगे? तो वी कॉल इट प्रोकैरियोट्स. इट्स प्रो, मैं प्रो लिख रही हूँ सिर्फ. कैरियोट्स यू नो, कैरियो मींस न्यूक्लियस. ठीक है, प्रो मींस फॉल्स और प्रिमिटिव. प्रोटिस्ट have nucleus or not? Yes, they do have. So it is U. Now fungi has nucleus? It's eukaryote. It is also eukaryote and it is also eukaryote. In Protista some are prokaryotes also. ठीक है, but now let's move to the one more thing, that is cellular organization, or we can say are they made up of only one cell or multiple cells? So what about Monera? Unicellular means? So unicellular means एक सेल का बना हुआ. Protista is also unicellular. Now what about fungi? All fungi are multicellular. Yes, any exception in this? Yes, yeast. जो आप केक खाते हो उसमें डलता है वो yeast. जो भटूरे खाते हो उसमें भी डलता है, डोसे में भी डलता है. So yeast is a fungi and it's unicellular. It's exception. ठीक है? So we can say here it can be uni and multi. इसमें हम दोनों लिख सकते हैं. ठीक है? Animalia, animals. What about us? Animals, we are multi or uni? What about plant? It is also multiple. ठीक है, अब आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, ये तो हो गया सेल. ठीक है, नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन. So there are mainly two nutrition types, hetero or auto. ठीक है, so Monera is what? Auto or hetero?
यस, ऑटो होता है। अच्छा मुझे कैन एनी वन ऑफ यू कैन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मोनेरा? कोई मुझे मोनेरा का एक एग्जांपल दे सकता है? एनी ऑफ यू? सबको पता है मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल आल्सो? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया आर व्हाट? प्रोकैरियोट्स, और वी कैन से मोनेरा। नाउ बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफिक, क्या वो अपना खाना खुद बनाता है? यस यस बेटा, अब कह रहे हो नो, और अभी कह रहे थे ये ऑटोट्रॉफिक है। दोनों ही स्टेटमेंट, एक उधर जा रही है एक उधर जा रही है, फिर कैसे होगी तुम्हारी सही? तो पहले एग्जाम्पल पता हो तब आप बता सकते हो इट इज ऑटो और हेट्रो। ऑटोट्रॉफिक नहीं होता मोनेरा, हेट्रोट्रॉफिक होता है। बैक्टीरिया को खाना दूसरे से चाहिए, खुद नहीं बनाता, तभी वो जो है दूसरों की मदद चाहता है। दैट्स व्हाई इट इज ग्रोइंग ऑन अर्थ, ग्रोइंग एवरीवेयर। ठीक है, इट इज हेट्रोट्रॉफिक। कमिंग टू प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट का क्या है? ऑटो और हेट्रो? Excuse me, ma'am, but यस बेटा, but in NCERT it is written some bacteria are autotrophic. बेटा खड़े होके बोलो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। And NCERT में लिखा है कि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बेटा those are basically, if we talk cyanobacteria, basically you're talking about the cyanobacteria, so that is exception, that are exception, but we consider the majority, so we say it's heterotrophic. ठीक है बेटा, like ऐसे तो हम plants को क्या कहते हैं? Plants are autotrophic और heterotrophic? Autotrophs कहते हैं ना, these are autotrophs. But if you learned in the class, I think 8th or 7th, you must learnt about picture plant, parasitic plants, insectivorous plants. पढ़ा है सबने? अब वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? From where they to take nitrogen? कहाँ से लेते हैं? दूसरे इंसेक्ट से लेते हैं। ओके, उनको किल करके लेते हैं। सो अब तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए कंप्लीटली, दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑल्सो। लेकिन बट वी से प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई। सो चलो यहाँ पर हमारा हो गया। अब आते हैं प्रोटिस्ट। नाउ प्रोटिस्ट में 50-50 होता है, ऑटो भी होता है हेट्रो भी होता है। ठीक है, कमिंग टू फंजाई, फंजाई इज ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक? यस बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। वी और वी कैन से एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक? चलो अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है, बोथ फंजाई एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, बोथ आर हेट्रोट्रॉफिक, बट how their heterotrophic mode of nutrition and how animals heterotrophic mode of nutrition is different from each other. कैसे अलग है? क्या सेम है? जैसे हम खाना अंदर लेके जाते हैं, then we digest it, है ना, ये सब करते हैं, then food is converted or we can take nutrients from the food that we consume. So बताओ, फंगस भी ऐसे ही करता है? फंजाई also do the same thing? क्या फंजाई के पास माउथ है? तो फंजाई, अच्छा फंजाई किस किस ने देखा हुआ है? किस किस ने फंगस कहीं लगे हुए देखा है? स्पेशली इन द रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, तो आपको बहुत दिख जाएगा। और जिसने नहीं देखा, खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ब्रेड लेना या कोई रोटी लेना, थोड़ी सी गीली करके बाहर रख दो, ठीक है, इन 2 days यू विल सी द ग्रोथ ऑफ फंजाई ओवर इट। व्हाइट कलर का कॉटनी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ग्रीन पैचेस यू कैन सी, सो दैट इज फंजाई ओनली। ठीक है, नाउ फंजाई कैसे खाना खाती है? अब वो हम अंदर लेते हैं, फिर हमारे जो केमिकल है वो मिक्स होता है खाने के साथ, बट इन फंजाई इट इज आउटसाइड द बॉडी। वो जो है सॉल्यूशन, जो केमिकल है बाहर रिलीज करती है, बाहर उसका जो है खाना डाइजेस्ट हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी दे ओनली एब्सॉर्ब इट। उसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है, उसको हम एब्सॉर्प्टिव भी कहते हैं।
So in bracket you can write down absorptive. वो खाने को बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, उसको सिर्फ एब्सॉर्ब करती है जब वो टूट चुका होता है पूरी तरह। सपोज कर लो स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, देन फंजाई एब्सॉर्ब दैट, ठीक है, वो सिंपलर सब्सटेंस को सीधा लेती है। इज इट क्लियर? Yes, is it clear? Fungi का heterotrophic mode of nutrition is different from us. How? Now you understood this thing? Yes. सबको clear है? Middle row first bench, middle row first bench, जो middle student है उसके जो left side में बैठा लड़का वो खड़े हो जाए। So now beta, can you tell me how fungus heterotrophic mode of nutrition is different from us? Yes beta? No. Why? You are sitting in the first bench. You should be more attentive. Yes? अब बताओ फंगस देखिए, पहले बताओ फंगस देखिए, देखिए। अब मुझे बताओ फंगस का माउथ देखा है कभी, मुंह देखा है? नहीं देखा। लेकिन जहां फंगस लगी होती है उसको अगर टच करो थोड़ा गीला गीला लगता है। कभी गलती से फंगस ब्रेड लगा ली हो या कोई खाने की चीज है जिसमें फंगस ग्रो की हो, तो इफ यू टच इट यू फील कि वो हाथ में जो चिपक रहा है। यस यस। सो बेसिकली व्हाट फंगस डज, क्या करता है फंगस, वो अपनी बॉडी से जो सॉल्यूशन है या केमिकल सिक्रीट करता है और जो खाना कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपलर में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो गया, देन इट एब्सॉर्ब इट, ठीक है। जो हमारे बॉडी में अंदर होता है ब्रेक डाउन जो है, डाइजेशन जो है अंदर होता है, इट इज हैपनिंग आउटसाइड बट इट इज एब्सॉर्बिंग दोस न्यूट्रिएंट्स लेटर ऑन, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर digestion and their digestion is different, but both are heterotrophic because we are not synthesizing food. Is it clear now? Okay, sit down beta, sit down. And plantae is autotrophic. Is it clear? सबको clear है? Yes, that's right. So now let's move to the taxonomical hierarchy. So these are 5 kingdom, है ना, ये kingdom कहलाते हैं। These are 5 kingdom. So let's move. अब जो ये kingdom है, let's take this is kingdom. Kingdom के नीचे क्या होता है? What comes before kingdom? Phylum. Is it phylum always? क्या ये हमेशा phylum ही कहलाता है? कौन सी कंडीशन में फाइलम कहते हैं और इन विच कंडीशन वी कॉल इट डिवीजन? Yes, those who know the answer just stand up and tell me the answer. ऐसे तो मुझे नहीं समझ आएगा. I'm not able to understand this. जिसको आता है stand up and speak up. It is more convenient way. आप अपनी एनर्जी ऐसी वेस्ट करो और मुझे समझना है. Yes, बेटा. Yes, that's right. So when we talk about animals, we say phyla. ठीक है? अगर हम एनिमल किंगडम की बेटा बात कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट है तो वी से इट्स डिवीजन. क्या कहते हैं? डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ये प्लांट्स हो जाता है. नाउ लेट्स मूव. अब इसके बाद क्या आता है फाइलम से पहले? क्लास. क्लास के बाद ऑर्डर और then genus, then yes, after this खत्म, finished? Okay, so that's right. सब इसको लिखो. Everyone note down. It's not a story that I'm narrating right now. Write down this.
This is a simple thing that comes in NEET exam also. Order. क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं. You may forget. So अगर आप इसमें से ये 3 को याद कर लो, इसको बाकी आपको याद रह जाएगा. किंगडम के पास फाइलम या डिवीजन ही आएगा. एंड द लास्ट इज जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है. सो व्हाट इज द ऑर्डर? दिस इज द ऑर्डर. इसको याद कर लो. कॉफ, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं कफ. कॉफ, खांसी करते हैं ना, कॉफ. सो यू कैन रिमेम्बर इट कि कॉफ आना है. कॉफ. ठीक है. 2 ऊपर 2 नीचे, इसके बीच में कॉफ. 2 ऊपर है और 2 नीचे हैं कॉफ के. हमेशा बच्चे बोलते हैं इस, ये जो 3 स्टेप्स है इसी में. क्लास के बाद ऑर्डर आएगा या फैमिली आएगा, फैमिली से पहले क्या आएगा. सो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. एंड नीट के जो पेपर सेटर है दे नो अबाउट दिस वेरी वेल. ठीक है. सो नोट डाउन दिस. इसको स्टार कीजिए बेटा. ये जो चीजें मैं निमोनिक्स बता रही हूँ इसको स्टार करके लिखो. ठीक है. दिस कैन कम. और अब मुझे बताओ, इनमें से अगर यहाँ पर हम बात करें, किसमें सबसे ज्यादा आपको एनिमल की पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? यस, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कहां पर? ये जो हमारे पास अब कितने हैं? वी हैव 7. क्या है इनको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? एक एक को क्या कहेंगे? व्हाट डू वी कॉल दिस? ये जो एक एक हमने लिखा है, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली, व्हाट डू वी कॉल देम? कहते क्या है? टेक्सोनॉमी. बेटा ये तो वो हो गया टेक्सोनॉमिक हायरार्की, दैट इज कंप्लीट. ठीक है. लेकिन इसमें जो एक है क्लास, ऑर्डर, इनको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? कॉल देम टेक्सा. ठीक है. इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड टेक्सा. ठीक है. दीज आर टेक्सा. ठीक है. अब आ जाता है, आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एट विच टेक्सा लेवल यू फाइंड मोर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो डाइवर्सिफाइड? इन जो एनिमल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिखेगी और अलग अलग दिखेगी, कौन से वाले टेक्सा में दिखेगी? किंगडम में या स्पीशीज में? इन किंगडम. ठीक है. इन किंगडम यू विल सी मोर. अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से में जो है आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, तो यहाँ पर है नॉन स्पेसिफिक, डाइवर्सिफाइड. ठीक है. पॉपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी सबसे ऊपर. और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, एज यू मूव डाउन फ्रॉम द किंगडम टू फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, आपकी जो छटनी होती जाएगी. ठीक है. सपोज कर लो एनिमल किंगडम है, हम कह रहे हैं कि जो है कोई भी XYZ एनिमल है. सपोज कर लो हमें कोई नया एनिमल मिला है X. ओके, दिस इज X एनिमल. ठीक है. दिस इज X एनिमल. अभी वो एनिमल किंगडम में हमने डाल दिया उसे, क्योंकि इट लुक्स लाइक एनिमल. ठीक है. नाउ वेयर वी शुड पुट, कौन से फाइलम में उसको डालें? कौन से फाइलम में डालें हम उसे, वो हमें सोचना. फाइलम कोई बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम फाइलम, एनिमल फाइलम्स? यस, एनी ऑफ यू? कोई फाइलम बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी फाइलम? कोई भी फाइलम, एक फाइलम. यस. आई डिडंट अंडरस्टैंड. फिर से बोलो. मोनेरा. Okay, पोरीफेरा. ओके, यू आर सेइंग पोरीफेरा. इट्स फाइन. अब हमें पोरीफेरा पता है, हमें पता है प्लेटीहेलमिन्थस, अकाइनोडर्मेटा, देयर मैनी, है ना? सो नाउ अब ये कोई एक्स एनिमल है एंड वी आर सेइंग दैट कि ये जो एनिमल है ये जो है कुछ क्वालिटीज हैं. क्या क्वालिटीज है? इसकी जो बॉडी है, ठीक है, सिमेट्री उसकी कैसी है?
हाउ इट्स सिमेट्रीज, ये अभी हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री क्या होती है। उसका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, हाउ इट्स बॉडी प्लान, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इज इट एसिलेमेट, मतलब इसमें कैविटी है या नहीं है। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट वी कंसीडर, और जब हम कंसीडर करते जाते हैं तो वी विल गेट द रियल रिजल्ट, तब हम उसको इस स्पीशीज में डालते हैं। जो स्पीशीज होती है सबसे नीचे है, ठीक है, लेकिन इट इज मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर हमें पूरा रिजल्ट मिल जाता है कि ये जो एक्स एनिमल है ये है क्या, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कम टू नो कि ये एनिमल कौन सा एनिमल है। सो लिखो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट, राइट डाउन, स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी, species is the smallest and most specific category, full stop। अब इसके आगे एक और लाइन लिखो, organisms are more likely, organisms are more likely closely related, closely related as you go from, as you go from kingdom to species, as you go from kingdom to species। तो एज ए डिस्कस्ड विद यू कि हम जो है इन सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। सो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट है बेस्ड ऑन द हैबिटेट, फर्स्ट इज करेक्टर्स, ठीक है। We are now learning about the characters on the basis we classify animals or we put it into specific, we can say species level, ठीक है। सो फर्स्ट इज हैबिटेट, उसका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहता है, ठीक है। सो लेट्स सी, इज इट टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन पे रह रहा है, इज इट एक्वेटिक, पानी में रहता है, और कहाँ रहता है, हवा में तो नहीं रह सकता ना। सो इट कैन फ्लाई बट इट इज नॉट, सो हियर आर टू ओनली, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक है, टू हैबिटेट्स। नाउ कमिंग टू सेकंड थिंग, कहाँ रह रहा है पता लग गया। देन वी डिस्कस अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री इज व्हाट, जो भी चीज है वो है कैसी, अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्या वो एक जैसे निकल के आएगा या अलग अलग हमें पीसेस मिलेंगे, दैट इज व्हाट सिमेट्री। जैसे अभी आपकी जो रोज है तीन, वो सिमेट्रिकल है, सब में जो एक जैसे बच्चे बैठे हैं, तीन तीन करके बैठे हैं, इतने ही जो बेंचेस हैं हर एक उसमें, सो वी कैन कॉल इट सिमेट्री। लेकिन अगर होता एक साइड 10 बेंच है, एक साइड 7 बेंच है, एक साइड जो है 5 बेंच है, सो दिस इज नॉट सिमेट्री, ठीक है। सो सिमेट्री इज दैट। अब बॉडी की सिमेट्री की बात करें, इसमें लिखो, और पहले चलो बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ इट, एंड आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। So these are three organisms, ठीक है। अब हम सिमेट्री को पढ़ने वाले हैं। सिमेट्री, ये जो फर्स्ट है, अगर हम इसको काटना चाहें तो हम नहीं काट सकते इक्वल में, ठीक है, वी नॉट फाइंड गेट द इक्वल पार्ट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है, किसी भी एंगल से काट लो तुम्हें इक्वल पीस नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट द सेम पीसेस, ठीक है। सो हियर इज दैट, और ये किसमें होती है, इट इज इन स्पॉन्जेस, ओके। सो यू कैन टेक एग्जांपल, एक दो लिख भी सकते हो यहाँ पर, यू कैन राइट द एग्जांपल आल्सो। नाउ दिस, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑर्गेनिज्म को, अगर हम कहेंगे सेंट्रल, ये जो एक्सिस है, लेट्स टेक इट इज सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब जो ये सेंट्रल एक्सिस है, इससे अगर हम इधर को कट करें
इधर से कट करे, इधर से कट करे, सो वी विल गेट द इक्वल पीसेस, हमें इक्वल पीसेस मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारी हमने लाइंस ड्रॉ की है और वी कट इट थ्रू द सेंट्रल एक्सिस एंड वी गेट द इक्वल पीसेस। इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और ये किसका स्ट्रक्चर है, यू कैन इजिली टेल मी, कोई बता सकता है ये क्या बनाया? इट इज हाइड्रा, इट इज हाइड्रा। नाउ सिमिलरली हियर, इसकी सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ इट सेंट्रल एक्सिस। अब इसे सेंट्रल एक्सिस से हम इसे कट करेंगे, ओके, बट अब इसे कैसे करेंगे, इसको एक ही प्लेन से कर सकते हैं, ओनली द वन प्लेन। इसको ऐसे अगर हम कट करेंगे, ओनली देन वी गेट द इक्वल हाफ, सीधा। ठीक है, ऐसे कट करेंगे तब हमें जो है इक्वल हाफ मिलेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इट्स अ बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल एज यू कैन सी इट्स प्लेन एरिया। It's plane area. So symmetry is understood. Yes. Okay. So now third is level of cellular, or we can say levels of organization in animals. ठीक है, ये हो गया. Is it done? Shall I move? Okay. Now third is level of organization. Level of organization. So in this, first is cellular. As name says, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ सेल है, टिश्यूज नहीं बने. ठीक है, कोई ग्रुप नहीं हुआ है, ग्रुपिंग इज नॉट डन. ठीक है, सो इट्स अ सिंगल सेल. ठीक है, सो जो भी सेल्स होंगे लूजली अरेंज्ड है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है. दे आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, उससे कुछ नहीं बनेगा जब तक ये साथ में आके टिश्यूज ना बना दें. ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट लाइक दिस. सो हियर वी कैन से सेल्स आर loosely arranged. ठीक है, लूजली अरेंज्ड है यहाँ पर सेल्स. और यहाँ पर कोई ट्रू टिश्यूज नहीं फॉर्म हुए हैं. सो एग्जाम्पल अगेन स्पॉन्जेस, नो tissues. Examples are, or we can take only one example here, sponges. ठीक है, now coming to second, tissue. Next is tissue level. Now tissue हमें पता है किससे बनता है, group of cells when they work together and they perform some, or we can certain tasks. ठीक है, cells form tissue that perform specific function. तो ये टिश्यू लेवल आ गया कि उनके अंदर जो है टिश्यूज बन चुके हैं, दे आर डूइंग सम वर्क टुगेदर. तो इसमें भी फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अगेन हाइड्रा, लेट्स टेक एग्जांपल जो हमने उसके लिए लिया था अभी पीछे, जो हमने सिमेट्री की थी रेडियल में, तो हम उसी ऑर्डर में चलते हैं. ठीक है, ताकि आपको एक एक एग्जांपल पता हो जाए, क्योंकि एग्जांपल्स डू कम. ठीक है, नाउ लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम. अब टिश्यू जब इकट्ठे हो जाएंगे दे मेक ऑर्गन्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा. वी कैन टेक प्लैटिहेल्मिन्थस. तो बेटा आई थिंक योर टाइम इज ओवर, इसको नोट कर लो. एंड before we end, I want to discuss that in the next class I am going to cover
Few more things, characters like xylem. You should know what is mesoderm, ectoderm, endoderm, and how they form different types of xylem. ठीक है? Schizophyllum, ठीक है? Then enteroxylem. So you should aware of these terms. ठीक है? Then we will discuss about diploblastic, triploblastic, ठीक है? Then body plan, protostomata, deuterostomata. So these are the basic things that we are going to cover in the next class, and I want you to please go through these things before the class. ठीक है? Class next Thursday से पहले ये सब पहले पढ़ के आना. ठीक है? So it will be like kind of revision for you. क्योंकि आपके हाफ एग्जाम में ये चैप्टर आने हैं, so आपका एक रिवीजन हो जाएगा. So I want you to focus on this. ठीक है? और कोई डाउट आज की क्लास में बेटा? एनी डाउट इन टुडेज क्लास? No doubt? Okay, that's fine. So bye students. Bye.